Now, after adjustments, what you will do? Trial balance. Check the trial balance debit side. Drawings, Brahma and Vishnu, it's given. As per the format, we will write the drawings in partners capital account debit side. Okay? Partners capital account you will write on debit side. Brahma's and Vishnu's drawings. In your textbook, partners capital accounts, format, specimen, everything is given. You have to put your efforts and you have to cooperate with me. Then leasehold building, that is your fixed asset. Leasehold building. It's given and it's 60,000 and in the bracket it's given from 1/4/16. This is for 10 years. This is for 10 years means you will divide it by 10. It's hidden adjustment. 60,000 को 10 से divide करो. You will get 6,000. Remaining 54,000. Second effect, hidden adjustment है तो जैसे depreciation का देते हैं. To return of leasehold building 6,000. Okay. After that, it's given machinery office. Machinery office that is 50,000. ये तो हमने adjustment के time कर दिया है. आप पहले से ही adjustments को टिक कर देना जैसे मैं आपको 11th में करवाती थी. Then discount allowed. As per the format, discount allowed PL debit. Discount allowed PL debit and the amount is given 350. Okay. Then debtors वो अपन ने लिख दिए हैं. Then carriage outward PL debit. Carriage outward PL debit. Furniture and fixture, that's also we have completed. Fixed assets में लिख के depreciation calculate कर लिया है. Salary completed. Bad debts completed. Then bills receivable, as per format it's current assets. Bills receivable, current assets. Then trading expense, expenses where you record in PL account debit side. Trading expenses, PL account debit side. Okay. Then cash balance, it's current assets. Current assets, cash balance. Then stock, closing stock. क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में 31/3 दिया है तो आप समझ जाना 31/3 मीन्स लास्ट डेट. सो इट्स क्लोजिंग स्टॉक. नाउ सी इट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, सो नो डबल इफेक्ट, ओनली वन इफेक्ट एंड दैट्स टू ओनली इन बैलेंस शीट इन एसेट्स. नाउ क्रेडिट साइड ऑफ trial balance, capital accounts of Brahma and Vishnu are given. So write in capital account credit side, drawings debit side, capital credit side. ब्रह्मा और विष्णु की कैपिटल दी हुई है 55,000 ऑफ ब्रह्मा एंड 45,000 ऑफ विष्णु. कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड. नाउ इट्स गिवन लोन ऑफ ब्रह्मा. ओके. नाउ स्टूडेंट्स सी देयर इज वन मोर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी और इसके अंडर आ जाएंगे हमारे लोन्स. It's given loan of Brahma. Loan of Brahma is 50,000. ये याद रखना. एज पर फॉर्मेट करंट लायबिलिटी के ऊपर एक और हेडिंग आएगी नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लोन्स आ जाते हैं तो लोन ऑफ ब्रह्मा भी उसमें जाएगा 50,000. नाउ लोन दैट मीन्स इंटरेस्ट तो पे करना होगा. बोलें कि नहीं बोलें, इट्स द हिडन एडजस्टमेंट. नाउ एज पर पार्टनरशिप डीड, अ पार्टनर
when he gives loan to the firm, whether it's not mentioned, then you have to pay 6% interest on loan. Okay, यहाँ पे बोला नहीं है, लेकिन बिना इंटरेस्ट का तो कोई लोन होता ही नहीं है ना. तो जब ना बोलें तो आपको समझ जाना है पार्टनर लोन पे, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स लोन, तो उस पर इंटरेस्ट कितना पे होता है, 6%. ओके, और वो आएगा हमारा PL अकाउंट में. सो हियर we are going to write to interest on Brahma's loan. Okay, now you take your calci. 50,000 पे 6% निकालना, बट एक और चीज़ का ध्यान रखना, ब्रैकेट में डेट दी है 1 जुलाई. सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टिल मार्च you are making final account. So 9 months interest you have to calculate. 50,000 into 6% interest, or as per the date given in bracket, जुलाई से मार्च 9 months होते हैं, तो into 9 divide by 12 करके you have to calculate the interest. That is 2250. And now this interest is still not paid. So this is आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. तो इसका हिडन एडजस्टमेंट है. सेकेंड इफेक्ट भी आएगा, दैट विल बी इन करंट लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ब्रह्मास लोन 2250. ये तो हमने लोन लिखा. अब लोन का इंटरेस्ट एक करंट लायबिलिटी में 6% एज पर टाइम पीरियड, और दूसरा PL में डेबिट साइड. क्लियर? Now in the trial balance, next it is given discount received income PL credit side by discount received account. It's given to you, discount received is given, that is 400. Okay, then creditors, where will you write creditors? करंट लायबिलिटी. फॉर्मेट तो अब आप ही को याद करना है ना, सिंपल, सिर्फ लर्न करना है फॉर्मेट. द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स इज 25,000. ओके, देन बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी एज पर फॉर्मेट, दैट इज 5,000 फ्रॉम टेक्स्ट बुक फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. ओके, कमीशन हमने कर लिया है. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल हो गए. ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस वही तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जो हम पहले से ही यहाँ लिख चुके हैं. ओके, सो फर्स्ट वी डिड द एडजस्टमेंट्स, देन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. इट्स सो सिंपल एज यू डिड इन 11th स्टैंडर्ड. सिर्फ फॉर्मेट रटना है. पुट योर एफर्ट्स. ओके, 11 marks, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम टीचिंग यू हाउ टू क्लोज द सम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिंपल, आप क्या करोगे, पहले इन दोनों साइड का टोटल कर लोगे. ओके, व्हाट यू विल डू, इन दोनों साइड्स का टोटल करो. अब जिस साइड कम टोटल आ रहा है, ऑब्वियसली डिफरेंस उसी साइड आएगा ना. आप पेंसिल लो, डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो. जिस साइड कम टोटल आया, ऑब्वियसली डिफरेंस उसी साइड आएगा ना. ओके, सो अब यहाँ पे टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का कम आ रहा है. जिस साइड कम आएगा वहाँ हम लिखेंगे. ओके, तो प्रॉफिट याद रखना, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा तो प्रॉफिट, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा तो प्रॉफिट. तो PL अकाउंट है तो हम इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट. मैंने क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का टोटल किया. क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कम कहाँ है, डेबिट साइड. जहाँ कम होगा वहीं डिफरेंस आएगा ना. ये भी आपको मैंने 11th में बताया है. बट क्रेडिट का टोटल ज़्यादा मीन्स इनकम ज़्यादा, इनकम ज़्यादा मीन्स जो आंसर है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा. वो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 68,750. और लास्ट में आई डोंट हैव द स्पेस हियर, दोनों साइड आप टोटल लिख देना. ओके, जो आपका टोटल आएगा ना
डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल होगा। जो बड़ा टोटल होगा वो दोनों साइड लिख के अच्छे से डबल लाइन से क्लोज कर देना। आई डोंट हैव द स्पेस हियर। अब द वेरी नेक्स्ट स्टेप, ट्रेडिंग का आंसर पीएल में ट्रांसफर होता है और पीएल का आपका आंसर ट्रांसफर हो जाएगा पीएल एप्रो में। ओके, 68,750। इज इट क्लियर? ट्रेडिंग से आंसर ट्रांसफर होता है पीएल में, पीएल डेबिट साइड आंसर आया तो वो पीएल एप्रो में कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? क्रेडिट साइड। अब यहाँ 68,750 और यहाँ कितना है? 9,000। ये क्रेडिट और ये डेबिट कहाँ कम है? डेबिट साइड कम है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड कम, तो ये प्रॉफिट हुआ। हम इसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। पीएल एप्रो का आंसर मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट। ये 68,750, इसमें से 9,000 माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा 59,750। दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ डिविजिबल मीन्स दोनों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? ब्रह्मा और विष्णु में। 59,750 को जो क्वेश्चन में 3:2 रेशो दिया है ना, उसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, ये जो आंसर आया 68,750 में से 9,000 माइनस किया, वो आपका प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है। तो ब्रह्मा और विष्णु में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3:2 रेशो है, इस प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3 वाला पार्ट ब्रह्मा को, 2 वाला विष्णु को, और टोटल 68,750, 68,750। ओके, ये क्लोज।